A very good morning, class 8th. I am your journal science teacher, Mrs. Kirti, and today we're going to start our new chapter, that is crop production and management. So students, what we will going to cover in this chapter is what is agriculture, what are different types of crops, what are various methods of crop production, how can crop production be increased, and animal husbandry. Alright, so let's start with this small presentation of this chapter. So what is agriculture? Till 10,000 BC, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops, and thus was born agriculture. So, people were nomadic. They used to wander from one place to the another for food and shelter, and slowly they started learning about the cultivation of plants and animals. फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती बाड़ी के बारे में जानना शुरू किया, प्लस उनको कल्टीवेशन के बारे में पता चला कि क्रॉप कैसे कल्टीवेट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें खाने वाली हैं, कौन कौन सी नहीं है, और फिजिकल मेहनत से फिर कौन सा टर्म जो है उसका स्टार्ट हुआ, दैट इज एग्रीकल्चर. सो नेक्स्ट इज what is crop? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Crop क्या है? जब भी एक जैसे जो प्लांट है, अगर वो एक लार्ज स्केल में कल्टीवेट या उगाए जाएंगे एक जैसे ही क्रॉप, तो उनको हम नाम देते हैं क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. So not only wheat, there are so many cereals are there, there are pulses are there, vegetables are there, fruits, spices are there, and fiber crops are also there. So when they are grown in large scale, okay, the same kind of a plant, that is called as crop. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. So on the basis of the season, we usually get different fruits and vegetables in different seasons. So on the basis of that, the crops are divided into two groups. The first group is Kharif crop and the second one is Rabi crop. So what is Kharif crop? The crop which are sown in the rainy season are called Kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton, etc. are खरीफ क्रॉप. तो ये सारे क्या हैं? खरीफ क्रॉप हैं, जिनको कि हम कब कौन से सीजन में उगाया जाता है बेटा? रेनी सीजन में. और हमारे इंडिया में रेनी सीजन कब होता है? जून टू सितंबर तक. सो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन. ऑलराइट, सो दीज ऑल आर योर खरीफ क्रॉप. इफ वी टॉक अबाउट रबी क्रॉप, सो रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन and their time period is generally from October to March. So some examples of Rabi crop are here: wheat, gram, pea, mustard and linseed. Beside these, pulses and vegetables are also grown during summer at some places. So students, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनको नजर रखते हुए कुछ सीक्वेंस बनाए गए हैं, कुछ सीरीज में इन चीजों को अरेंज करके रखा है, जिसकी वजह से फार्मर जो है वो कोई भी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकता है. पर फार्मर को ये सारी सीरीज 1 से लेके 7 तक पता होनी चाहिए. ये सारी सीरीज को हम डीपली डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज सोइंग, third is adding manure and fertilizers, fourth is irrigation, fifth is protecting from weed, sixth is harvesting, and seventh is storage. So let's talk about our first agriculture practice that is done is preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop, and one of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. So बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहला स्टेप है जिसमें हमें सॉइल बेड को प्रिपेयर करना पड़ता है, और हमें बहुत जरूरी है कि हम उस सॉइल को लूज करें.
इज दैट क्लियर? और ये क्या अलाउ करता है? डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स इनटू द सॉइल, प्लस बेटा बेटर एरिएशन. एरिएशन का अर्थ है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जब सॉइल लूजन होगा तो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो सॉइल में प्रेजेंट होंगे वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे. और हमें ये पता है कि फार्मर का जो फ्रेंड है वो किसको कहते हैं? हम अर्थवॉर्म को, जो हमारे सॉइल को नेचुरल ही फर्टिलाइज करता है और उसको ह्यूमस ऐड करता है. सो देयर आर सम ऑफ द टूल्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल प्रिपेयर करने के लिए. सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग. सो इसको नाम दिया गया है कि जब भी आप सॉइल बेड को प्रिपेयर करते हैं तो आप सॉइल को जब लूज कर रहे होते हैं या उसको अपसाइड डाउन करते हैं, टर्निंग ऑफ द सॉइल को, इसको नाम दिया गया है जो कहते हैं हम टिलिंग और प्लोइंग. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंडर प्लॉ क्या चीज है? दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ. Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plow field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. तो जब भी हम प्लॉ का इस्तेमाल करते हैं सॉइल को टर्न करने के लिए, तो उससे 1 day बिफोर हमें उसको सॉइल को वाटर करना पड़ता है ताकि वो मॉइस्ट हो सके एंड इट इज इजी टू प्लो. ऑलराइट, आफ्टर प्लॉइंग व्हाट हैपेंस? बेटा बड़े बड़े बिग पीसेस होते हैं सॉइल के, उनको नाम दिया गया है क्रम्स. सो वी कैन नॉट सो अ सीड इफ वी हैव अ लॉट्स ऑफ क्रम्स ऑन आवर field, isn't it? So it is necessary to break these crumbs with the help of one more tool which is called as plank. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are plow, hoe and cultivator. So बेटा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें जरूरी है कि हम इन टूल्स का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने सॉइल बेड को एक प्रॉपरली लेवल अप कर सके. और इसमें लिखा गया है इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट द बेटर yield. So plow. So how plow usually looks in the field whenever it has been used. प्लॉ बेसिकली एंशियंट टाइम से यूज होता आ रहा है बेटा. ये टिलिंग द सॉइल, उसको टर्न करने के लिए, लूजन करने के लिए बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है. और प्लस प्लॉ करने से पहले उसमें फर्टिलाइजर ऐड की जाती है, काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल के साथ प्लॉइंग के दौरान ही वो मिक्सअप हो जाए. सो रिमूविंग द वीड्स. प्लॉइंग का एक और एडवांटेज है कि बेटा रिमूव करता है वो वीड्स को. वीड्स का अर्थ है अनवांटेड प्लांट्स, घास जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, उसको भी रिमूव करता है. प्लस स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल में भी हेल्प करता है. इट कंटेन्स, किस तरीके से हमारा प्लॉ जो टूल है वो दिखाई देता है. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप called plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft और वो जो हैंडल होता है उसको अटैच किया जाता है to a beam which is put on the bull's neck. The plowshare is curved to turn the soil after cutting it. Okay, so this is how a plow, this tool has been used in the field. The second tool, if I'll talk about, is a hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. सॉइल को लूज करने के लिए हो का इस्तेमाल होता है, प्लस रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने के लिए भी हम हो का इस्तेमाल करते हैं. इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड and works like a blade. It is pulled by, this has also been pulled by animals. Okay, some of the tools which it has been shown here in the second picture, it is used manually. इसको manually भी इस्तेमाल किया जाता है. जो नंबर फर्स्ट पार्ट में जो आपको इमेज दिख रहा है बेटा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो एनिमल्स के थ्रू पुल किया जाता है. वो आप बीम दिख रहे हैं ऊपर, वो एनिमल के नेक में डाला जाता है ताकि उससे वो उसको पुल कर सके. Nowadays plow has been used from ancient times. Hoe has also been used from ancient times, and there is a
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लेबर हैज बीन यूज, तो लोग ज्यादा चाहिए होंगे। इसी चीज को कम करने के लिए हमारी साइंस ने कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से कल्टीवेटर, एक ट्रैक्टर है जिसमें प्लॉइंग की जाती है एंड इट डजंट यूजुअली टेक मच पीपल, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होता है इसमें और टाइम भी सेव होता है। तो प्लॉइंग जो है वो ट्रैक्टर के थ्रू किया जाता है विच इज ड्रिवन बाय अ कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, ये टाइम भी बचाता है बेटा और लेबर भी। एग्जैक्टली, प्लस इसमें एनिमल भी अब्यूज नहीं होता है। द सेकेंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो फार्मर को पता होनी चाहिए वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोइंग। Sowing is the most important part of crop production, and before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tool used for sowing seed. बहुत जरूरी है कि फार्मर को पता होना कि किस तरह की गुड क्वालिटी सीड्स को और हेल्दी सीड को उसको सो करना है। इफ वी गेट, अगर मैं मार्केट में जाऊंगी सीड्स लाने बेटा, उसको हम इमीडिएटली सो नहीं करते हैं। ये एक टेक्निक है जिसको फार्मर्स भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आप घर में भी कर सकते हैं इसको। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पानी से भर दीजिए हाफ ऑफ इट विद वाटर। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर वेल, आप व्हीट सीड उसमें डाल दीजिए उस पानी में और उसको अच्छे से स्टर करें। वेट फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए वेट करें। उसके बाद आप क्या देखेंगे? आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक? व्हाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज सीड्स जो होती है बेटा वो हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, इसीलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं। और जो गुड क्वालिटी सीड्स होती हैं दे यूजुअली सिंक डाउन, वो नीचे बॉटम में, कंटेनर के बॉटम में बैठी हुई होती है। इज दैट क्लियर? सो जो हॉलो सीड्स होती है उसको फार्मर फेंक देता है और जो अच्छी सीड्स होती है उसको फिर वो कल्टीवेट करता है, फिर उसको सो करता है फील्ड में। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि विच इज अ गुड क्वालिटी सीड। ट्रेडिशनली पहले लोग क्या करते थे बेटा, कौन से टूल का इस्तेमाल करते थे? द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल की तरह होता था ये, और सीड्स आर फिल्ड विद द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having a sharp ends, and these ends pierce into the soil and place seeds there. So बेटा ट्रेडिशनल टूल का एक ड्रॉबैक ये भी था कि जब इस सीड्स को सो करते हैं तो बर्ड्स जो होती है वो सीड्स को डैमेज कर देती हैं और वो अच्छे से कवर्ड अप नहीं होता है। इसीलिए nowadays what has been used is seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. Tractors की हेल्प से इसको सो किया जाता है। This tool sows the seeds uniformly at proper distance and depths. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by the birds. Sowing by using a seed drill saves time and labor. So this is also science की टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से सीड ड्रिल जो था फार्मर्स के लिए एक बून है, एक वरदान है, क्योंकि एक तो ये टाइम सेव करता है प्लस ह्यूमन लेबर भी ज्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। ओनली 1 person कैन ऑल्सो डू दिस वर्क। सो दिस इज हाउ sowing is done. So rest of the topic students I'll clear it tomorrow and I'll send you the video tomorrow, and thank you very much.